Hello and welcome students once again to Ujjwal's biology classes. I know we are meeting after a long time since in YouTube. So right now I'll be starting once again with the chapter of plant kingdom. So here begins again the plant kingdom. First of all, what we will have to know in this plant kingdom is that all the organisms which are included in the plant kingdom has to be multicellular. They has to be multicellular in nature. That is the first point. And after that, all has to be eukaryotic. The nature of the cell should be eukaryotic in nature. We know what is eukaryotic. The nature of the cell, we can define it into two types. Eukaryotic, having a well-defined nucleus, and at the same time, if I talk about prokaryotic cell, then it will be a cell with a non-defined nucleus, or the cell which does not have a proper nuclear membrane covering it. That type of a cell, we can say it as a prokaryotic cell, and we know the kingdom which has all the prokaryotic cells is termed as monera. Clear? So these 2 points are very much of importance while we discuss about the plant kingdom, and after this we have to discuss about the cell. So here the presence of cell wall will be noticed. Presence of cell wall will be noticed in entire organisms of the plant kingdom. Clear? उसके बाद हमें जो चीज पता होना चाहिए कि अगर ये प्लांट किंगडम के अंदर इंक्लूडेड है, क्योंकि यहां तक आप जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने लिखा है, these are similar in both plant kingdom as well as plant kingdom से पहले जो हम लोग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे थे, किंगडम की बात कर रहे थे, that is फंगी. क्लियर? तो फंगस के अंदर भी, या किंगडम फंगी या जो किंगडम माइकोटा था, उसके अंदर भी ये 3 चीजें हमें बिल्कुल बारीकी से अच्छी तरह उसमें भी मिला था. तो नाउ जो पॉइंट मैं लिखने जा रहा हूं, that marks the difference between the kingdom fungi and your kingdom plant. ठीक? तो वो आपका हो जाएगा the presence of green pigment, and that is chlorophyll. Okay, so plants are green in color. आप लोग बहुत पहले क्लासेस में से पढ़ते आ रहे हो कि yes, this is the pigment which is termed as chlorophyll, due to which the plants are green in color, and this chlorophyll absent in your kingdom mycota. And since there is presence of chlorophyll, therefore these plants can be easily, with the help of sunlight, they can perform photosynthesis, and hence they can prepare their own food. That means they can undergo photosynthesis and hence are considered to be autotrophs. I can say them as autotrophs, or I can also say them to be producers of our ecosystem, because it is these plants on which the entire ecosystem or the environment depends on for food. Clear? So what are the points which I have discussed? Once again, all the organisms which are included in the plant kingdom, they are multicellular. But here one thing I want to add, that in the first division of the plant kingdom, that is Thallophyta, which contains algae, there is
one unicellular plant living inside. Clear? So exceptions are there except Chlamydomonas. So you have to Chlamydomonas. So you have to just remember this name. This is your unicellular organism which is placed under the kingdom Plantae. Other than this, all the organisms which are included in the plant kingdom are multicellular, having a proper eukaryotic cell with a well-defined nucleus. There is the presence of the cell wall, then of the presence of the green color pigment, that is the chlorophyll, due to which the plants are green in color, and due to the presence of chlorophyll they can easily absorb sunlight and can undergo photosynthesis, due to which we term them as your autotrophs or your producers. Okay, now before moving further, we will now be discussing about the type of life cycle which all the organisms inside the plant kingdom will be exhibiting. Clear? Now we will be generally studying about the life cycles. What are the various types of life cycles which all the organisms in the plant kingdom undergo through? Let's see. So now we will be studying about the alternation of generations. Alternation of generations. हमें ये याद रखना है कि जितने भी organisms which are included in the plant kingdom, all will be showing this alteration of generations. अच्छा, alteration का मतलब क्या होगा? मतलब कभी एक टाइप चलेगा, उसके बाद वो चेंज होकर किसी दूसरे टाइप को बन जाएगा. मतलब प्लांट्स के अंदर जो लाइफ साइकिल ऑफ द प्लांट्स हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, उनके अंदर हमेशा दो तरीके के आपके जनरेशंस दिखाई देगा. क्लियर? गॉट इट? देयर आर टू जनरेशंस व्हिच द एंटायर ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट किंगडम के अंदर रहता है, वो कभी ना कभी इस दो जनरेशन से होते हुए गुजरेगा. क्लियर? ठीक. तो एक हम लोग जो जनरेशन का नाम बोलेंगे, दैट विल बी गैमेटोफाइटिक जनरेशन, और दूसरा हो जाएगा स्पोरोफाइटिक जनरेशन. बहुत अच्छी तरह समझिएगा, क्योंकि काफी हद तक ये दिस ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन योर बोर्ड एज वेल एज योर नीट एग्जामिनेशंस. Many questions are asked from this topic. Clear? Gametophytic मतलब ही कहीं पर हमें पता चल रहा है something related to gametes. ठीक? तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं gamete producing plant body. लिख सकता हूं या नहीं? This is the gamete producing plant body, जिसको हम लोग नाम देते हैं the gametophytic generation. ठीक? तो gametophytic generation के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा? गैमेट का प्रोडक्शन होगा. Similarly, if I talk about sporophytic, तो स्पोर से ही हमें समझ में आ रहा है स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट बॉडी. जो प्लांट बॉडी क्या पैदा करेगा? स्पोर्स पैदा करेगा. क्लियर? ठीक. यहां पर हमें एक चीज और जानना है कि व्हाट इज द प्लॉइडी. क्या बोला मैंने? व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ दिस टाइप ऑफ जनरेशन. नाउ आप लोग बोलोगे, what do you mean by ploidy? Ploidy है number of chromosomal set which is present inside the eukaryotic cell. Clear? हमें पता है अगर हम लोग प्लॉइडी की बात करते हैं
चलिए हम लोग यहां पर तो प्लांट किंगडम की बात करते हैं, बट आपको बहुत अच्छी तरह समझाने के लिए आई कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन बींग्स। हमें पता है कि अगर हम लोग ह्यूमन बींग्स को लेके चलते हैं तो ह्यूमन बींग्स के एक सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होगा दैट विल बी 46 क्रोमोसोम्स। आप पहले भी पढ़ के आए हो ये चीज, ठीक? जब हम लोग हेरिडिटी पढ़ रहे थे, क्लियर, तो तब मेंडल के लॉस पढ़ते हुए टाइम पे जब सेक्स डिटर्मिनेशन कर रहे थे तब हमें पता चला था कि एक जो ह्यूमन सेल होगा उस हर एक सेल के अंदर टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46। बट मेरा सवाल है, क्या ये क्रोमोसोम 1 2 3 ऐसे करते हुए 46 रहता है, या हाउ आर दीज 46 क्रोमोसोम्स अरेंज्ड? सो आंसर विल बी कि ये जो 46 क्रोमोसोम्स है दे एग्जिस्ट इन पेयर्स। ये कैसे आपके एग्जिस्ट करते हैं? ये अलोन या सिंगल सिंगल 46 अलग अलग आपके नहीं रहेगा, ये रहेगा किसी एक के साथ जोड़ीदार बना के इन पेयर्स, और इसीलिए आपके 46 अगर पेयरिंग में होगा एक दूसरे के साथ तो देयर विल बी 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम इन ईच ह्यूमन सेल, हम लोग बोल सकते हैं। क्लियर? मतलब क्या है, अगर सपोज करो मैं इसको नंबरिंग देता हूं 1 to 23, सो इफ आई टॉक अबाउट 1, सो 1 पेयर बनाएगा विथ 1 डैश। सपोज करो 2, सेकेंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, वो अपना पेयर बनाएगा विथ द सेकेंड डैश ऑफ क्रोमोसोम। ठीक ऐसे करते हुए जो 23rd क्रोमोसोम होगा, दिस 23 या 23rd क्रोमोसोम will be pairing with the 23rd dash chromosome। मतलब क्या हुआ, ये आपके 1 to 23 क्रोमोसोम मिला के 1 सेट बना रहा है, और ये 1 डैश टू 23rd डैश तक आपका 2 सेट बना रहा है, मतलब ये भी एक सेट बना रहा है। ठीक? जब एक सेल के अंदर ऐसे प्रॉपर 2 सेट आपके पाया जाता है उसको हम लोग नाम देंगे डिप्लॉइड। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं ना, प्लॉइडी मतलब हाउ मेनी सेट ऑफ क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल सेल। क्लियर है? तो प्लॉइडी के अंदर हो सकता है हैप्लॉइड, हो सकता है डिप्लॉइड, हो सकता है ट्रिप्लॉइड एंड फर्दर मोड, ये सारी चीज हो सकता है। ठीक है ना? सो ये जो हैप्लॉइड कंडीशन है उसको हम लोग डिनोट करते हैं विथ एन। तो ठीक वैसे ही डिप्लॉइड हो जाएगा 2n, n प्लस n, ट्रिप्लॉइड हो जाएगा n प्लस n दैट इज 3n, और ऐसे करके प्लॉइड ही चलता जाएगा। क्लियर? ठीक? तो हैप्लॉइड किसको बोलूंगा? अगर आपके कोई भी एक सेल के अंदर सिर्फ एक ही सेट प्रेजेंट हो, आइदर दिस वन और दिस वन, इन दोनों सेट में जो कि पेयर में रखा हुआ है, अगर इन दोनों में से कोई एक आपका रह जाए तो देन वी विल बी टेलिंग दिस एज हैप्लॉइड, मतलब n नंबर्स। क्लियर? ठीक है? तो हर एक सेट को मैं डिनोट कर सकता हूं विथ n। सो n प्लस n मिला के हमारे अंदर, क्योंकि आपके यहां पर पेयर्स में रहता है, तो ऑब्वियसली हम लोग बोल सकते हैं ह्यूमन सेल जो होगा दिस विल बी अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ अ डिप्लॉयड सेल हैविंग 2n number of chromosome, one set of chromosome having pair with the another set of chromosome, और फिर वो दो जने एक साथ आपका रहता है। कोई दिक्कत समझ में आया? प्लॉइडी मतलब क्या है? ठीक? क्योंकि आगे जाके नॉट ओनली इन दिस चैप्टर, देयर आर मेनी मोर अदर चैप्टर्स टू कम,
not only in class 11 but also in class 12, when we will be getting this topic about haploid, diploid, triploid further, जब हम लोग एंजियोस्पर्म्स की बात करेंगे तब काफी बार ट्रिप्लॉइड टिश्यू भी बात होता है आपका। क्लियर? आप थोड़ा सा याद कीजिए, जब क्लास 10 के अंदर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का पोर्शन चल रहा था, वहां पर हम लोग बात कर रहे थे अबाउट डबल फर्टिलाइजेशन। वी वर डिस्कसिंग अबाउट कि प्लांट्स के अंदर एक अनोखा जो आपका फ्लावरिंग प्लांट्स है स्पेशली, दे अंडरगो डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक, तो डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर एक तो बनता है मेरा जाइगोट और एक बनता है एंडोस्पर्म, जिसको हम लोग प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस भी बोलते हैं, PEN। ठीक, तो दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ a diploid 2n, whereas the endosperm was आपके example of the triploid tissue that is consisting of 3n। कोई दिक्कत? क्लियर है? यहां तक अगर समझ में आ गया है कि प्लॉइडी क्या होता है, इसके बाद हम लोग आसानी से एक चीज आपको याद दिलवा सकते हैं कि, बहुत अच्छी तरह सुनना, we have to remember something about the type of cell division। ठीक, सेल साइकिल और सेल डिवीजन आपके क्लास 11 में ही टॉपिक है जो हम लोग बाद में आपके डिस्कस करेंगे। मोटा मोटा आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा कि अगर आपका कोई डिप्लॉयड सेल होता है और डिप्लॉयड सेल डिवाइड हो रहा है, डिवाइड होकर ऑब्वियसली 2 सेल्स में डिवाइड होगा। ठीक, अगर मैं इसको पेरेंट सेल बोलूं, सपोज दिस इज योर पेरेंट सेल, तो पेरेंट सेल इज डिप्लॉयड, पेरेंट सेल इज डिप्लॉयड, सो पेरेंट सेल अंडरगोज सेल डिविजन टू प्रोड्यूस 2 डॉटर सेल्स सच दैट ईच डॉटर सेल इज अगेन बिकमिंग डिप्लॉयड इन नेचर। ये दोनों क्या है? दीज आर द 2 डॉटर सेल्स and each daughter cells is having the same number of chromosome as it was present inside the parent। तो इस टाइप ऑफ सेल डिवीजन जो हो रहा है यहां पर हमें दिखाई दे रहा है, neither the chromosome number is getting increased, neither the chromosome number is getting decreased, but it is remaining the same। So this type of a cell division is generally known as माइटोसिस। क्लियर? समझ में आया? माइटोसिस का मतलब है, इसको हम लोग दूसरा नाम दे सकते हैं इक्वेशनल सेल डिवीजन। तो इक्वेशनल सेल डिवीजन के अंदर हम लोग क्या देखें कि जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपके रहेंगे पेरेंट सेल के अंदर, आफ्टर द पेरेंट सेल विल बी गेटिंग डिवाइडेड, it will be the daughter cells each will be having the same number of chromosome। कोई दिक्कत? अगर यहां पर n है और n डिवाइड हो गया, आपने 2 सेल बना, दोनों में ही n और n, तो this can be also an example of mitosis। why? because parent cell के अंदर भी n है, daughter cell के अंदर भी n है, तो there is no gain or loss in chromosome, there is the equal distribution of chromosome between the parent organism and the daughter organism। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब अगर इसी को मैं दूसरे हिसाब से आपको समझाऊं कि सपोज योर पेरेंट इज 2n, डिप्लॉयड है, और डिप्लॉयड सेल अंडरगोज सेल डिवीजन टू प्रोड्यूस 2 डॉटर सेल्स सच दैट ईच डॉटर सेल रिसीव्स ओनली द हाफ of the number of total chromosome which is present inside the parent। क्या बोला मैंने लिया parent diploid, so this is my diploid parent having 2n number of chromosome, diploid parent undergoing cell division to produce 2 daughter cells each having half the number of chromosome। parent के अंदर 2n है, जो डॉटर सेल है उसके अंदर सिर्फ n हुआ, मतलब एक रिड्यूस हुआ। तो दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन जहां पे रिडक्शन हो रहा है, इसको हम लोग नाम देते हैं मियोसिस। क्या नाम देते हैं? मियोसिस या मियोटिक सेल डिवीजन। क्लियर?
और इसको हम लोग और दूसरे नाम से भी जान सकते हैं रिडक्शनल सेल डिवीजन। दिस वॉज योर इक्वेशनल, और यहां पर हम लोग पढ़ेंगे रिडक्शनल सेल डिवीजन। कोई दिक्कत? तुरंत एक बार देख लीजिए, मैंने यहां पर बताया टू टाइप ऑफ सेल डिवीजन। एक हो जाएगा आपका माइटोसिस और दूसरा हो जाएगा मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस को अच्छी तरह समझने के लिए आपको इसके दो अलग अलग नाम पढ़ना पड़ेगा। माइटोसिस इज ऑल्सो नोन एज इक्वेशनल सेल डिवीजन, whereas meiosis is also known as reductional cell division. क्लियर? ठीक। माइटोसिस के अंदर पेरेंट्स के अंदर जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होगा, सेम अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम्स विल बी कॉपीड, द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द क्रोमोसोम विल बी हैपनिंग एंड इट विल बी फॉर्मिंग द डॉटर सेल। देयर विल बी नो गेन लॉस ऑफ क्रोमोसोम। कोई दिक्कत? अच्छी तरह समझ में आया ये चीज? क्लियर? अब अगर मैं मूव करता हूं मियोसिस के अंदर, अगर पेरेंट है आपका डिप्लॉयड या जितने भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट के अंदर होगा, अगर ड्यूरिंग सेल डिवीजन डॉटर के पास उसका आधा ही पहुंचा, मतलब क्या हुआ? रिड्यूस हुआ। पेरेंट के पास जितना है उसका आधा ही जा रहा है आफ्टर सेल डिवीजन टू द डॉटर्स। Parent is having 2n. After cell division, each of the daughter cell is receiving only n number of chromosome. तो इस पर्टिकुलर टाइप को हम लोग बोलते हैं रिडक्शनल सेल डिवीजन, और इसी को ही हम लोग साइंटिफिकली बोलते हैं मियोसिस। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? प्लीज, हम लोग डिटेलिंग तो पढ़ेंगे ही कि माइटोसिस के स्टेप्स क्या है, मियोसिस के स्टेप्स क्या है, बट ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को हम लोग फर्दर तभी आप अच्छी तरह पढ़ पाओगे जब आपके माइटोसिस और मियोसिस इन दोनों के कंसेप्ट्स बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाए। कोई दिक्कत? ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग अब देख रहे हैं, दो हमें टर्म्स अच्छी तरह समझना पड़ेगा। क्या क्या टर्म्स? अगर मैं बोलूं कि gametes are always haploid. Gametes मतलब I am talking about the sex cells. क्लियर? सो ये जो gametes है, जो सेक्स सेल्स है या जनरेटिव सेल है, ये हमेशा आंख बंद करके याद रख लो कि दे आर ऑलवेज haploid in nature. Clear? Whereas if I talk about the parents which will be producing the gametes, they may be haploid or they may be diploid. Clear? समझ में आई ये चीज? दोबारा सुन लो। गैमेट्स मैंने बोला हमेशा क्या होगा? हैप्लॉइड ही होगा। चाहे आप कोई भी ऑर्गेनिज्म देख लीजिए, बी इट योर फंगी, बी योर जो भी आपके स्पोर्स वगैरह निकल रहा है या जो भी गैमेट फॉर्मेशन कर रहा है, गैमेट सेल के अंदर अगर आपसे कोई भी पूछे कि व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाट इज द प्लॉइडी, जस्ट से गैमेट्स आर हैप्लॉइड हैविंग ओनली n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्लियर? ठीक। वहीं पे अगर मैं बात करता हूं पेरेंट्स की, पेरेंट्स हो सकता है हैप्लॉइड। तो सपोज करो दिस इज योर हैप्लॉइड पेरेंट। हैप्लॉइड पेरेंट्स गैमेट्स प्रोड्यूस कर रहा है। आई नो दैट गैमेट्स आर हैप्लॉइड इन नेचर। क्लियर? ठीक। इधर देखो अच्छी तरह, हैप्लॉइड पेरेंट्स है। हैप्लॉइड पेरेंट्स मतलब n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिवाइड होके गैमेट्स बना रहा है n। वहीं पे अगर मैं डिप्लॉइड पेरेंट की बात करूं जिसके अंदर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ये आफ्टर सेल डिवीजन गिविंग राइज टू गैमेट्स एंड गैमेट्स आर अगेन हैप्लॉइड इन नेचर। मुझे बताओ इन दोनों में ऑब्वियसली सेल डिवाइड हो रहा है, इस सेल डिवीजन को हम लोग क्या नाम देंगे और इस नंबर 2 सेल डिवीजन को हम लोग क्या नाम देंगे? अगर आप अभी तक अच्छी तरह सुने हो तो तुरंत आप बता दोगे इस 1 और 2 में मियोसिस कौन सा होगा और माइटोसिस कौन सा होगा। क्लियर? मियोसिस रिडक्शन डिवीजन। तो रिडक्शन किसके अंदर हो रहा है? सेकंड वन।
डिप्लॉयड था, डिप्लॉयड से आपका हैप्लॉयड बन रहा है, तो ऑब्वियसली दिस विल बी मियोसिस। क्लियर? और जहां पर कोई भी रिडक्शन गेन नहीं हो रहा है, इक्वेशनली सेम हो रहा है, इसको हम लोग नाम देंगे माइटोसिस। कोई दिक्कत? अच्छी तरह समझ में आया? अगर ये समझ में आ गया है तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो मैं आपसे शेयर करूंगा उसके अंदर हम लोग बहुत बारीकी से देखेंगे कि प्लांट्स या ऑर्गेनिजम्स कैसे करके इन दोनों के अंदर आपके ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन दिखाता है। मतलब क्या है? हर प्लांट जो भी अपने प्लांट ऑर्गेनिज्म के अंदर होंगे, प्लांट किंगडम के अंदर होंगे, हर एक ऑर्गेनिज्म विच इज इंक्लूडेड इन द प्लांट किंगडम विल बी शोइंग at some stage or other they will be going through for some time gametophytic and then it will be becoming sporophytic, or it will be becoming a sporophytic and then it will be forming a gametophytic। मतलब इन दोनों में फिर ऑल्टरेशन या साइक्लिक चेंज होता रहेगा। क्लियर? ठीक, तो अच्छी तरह आप ये वीडियो देखिए। अगर इसमें आपको कोई भी ऐसा पॉइंट है जो आपको समझ में नहीं आया है, क्लियर, तो जैसे ये वीडियो खत्म होगा आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर वहां पर मिल जाएगा, ईमेल आईडी भी मैं आपका आफ्टर दिस वीडियो आपको मिल जाएगा अपडेट, तो वहां पर आप तुरंत मुझे किसी भी अगर छोटे से छोटे भी क्लैरिफिकेशन है तो आप मुझे पूछ सकते हो। इफ यू आर गोइंग थ्रू सर्टेन काइंड ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि काफी सारे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं आपके नीट के, तो अगर आपके कभी भी आप उस टाइप ऑफ क्वेश्चन से भी आगे बढ़ते हो, अगर आपको नहीं आता है तो तुरंत आप मुझे व्हाट्सएप में वो क्वेश्चन लिख के बता दो, आई विल बी डेफिनेटली एबल टू सॉल्व इट। क्लियर? टिल देन थैंक यू, अच्छी तरह ध्यान दो, नेक्स्ट वीडियो में परसों पोस्ट कर रहा हूं। थैंक यू वेरी मच।